Hi everyone, welcome back to the channel. So guys, this query is gaining a lot of prominence these days whether RBI Grade B 2024 would be having less vacancies or not. Is this a truth or it is just a rumor? Well, we cannot just answer this question in a plain yes or no. Rather, let's try to discuss this in a comprehensive manner. The first thing that we need to discuss is that what is the possibility of vacancies being less in the year 2024? If indeed the vacancies are going to be less, then what is the reason? It is very important to know the reason. Is there any mandate by RBI कि भैया हम हमें जरूरत नहीं है, हम और बंदे नहीं लेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कम बंदे लेंगे? Because if there is any such mandate, then it would mean that vacancies would be less in the coming years also. Then if the vacancies are going to be less, what is the impact on your chances or on the competition? And fourth, how can you minimize that impact if the vacancies are going to be less? So if I start with the first and the foremost query, which is very important in this whole context, that is there any possibility of vacancies being less in the year 2024? So whatever I'm going to tell you is based on my unofficial conversation with two people. लेकिन दोनों ने जो बताया है वो ऑलमोस्ट सिंक में है. The first person whom I conversed with told me that not about the journalists but the total number of vacancies including journalists, DSM, DEPR, it would be between 90 to 100. This is what the first person told me. And the second person told me that I don't know about the whole number of vacancies. I can only tell you about the journalist vacancies. So he told me that in April, as per the demand raised by various departments on the vacancies that they had, the vacancies were around 65 in the month of April when the notification was originally scheduled to come, but then it got delayed due to elections, which was supposed. So at that time it was 65. So both these things are in sync. 65 journalists की आएंगी भैया, overall 90 to 100 के बीच में आएंगी. So this is making a lot of sync here. अब ये शायद थोड़ी बहुत बढ़ जाए क्योंकि after April there have been now 2-3 months, maybe they have again asked for acquisition, so this might become 75 or in that range. That would be a bonus. But अब इतना sync हो रहा है चीजों में and lot of other YouTubers and channels are also mentioning this. It seems इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है कि आपकी वैकेंसीज 60 to 70 के बीच में इन दी जर्नलिस्ट डोमेन आ सकती हैं. ठीक है, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन अनऑफिशियल कंफर्मेशन. नाउ व्हाट इज द रीजन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. इज देयर एनी मैंडेट बिहाइंड दैट? कई बार होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन बोलती है हमें तो ऑटोमेशन करना है, हमें और बंदे नहीं चाहिए, या हमारे पास पैसे नहीं है, हमें वर्कफोर्स रिड्यूस करना है. Is there any mandate of such kind? The answer is there is no such mandate of this kind by RBI. The sole reason which I have come to know again from unofficial sources for this less number of vacancies is कि जो पहले बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई थी 230 250 तक शायद गई थी, उसमें उन्होंने ज्यादा लोग हायर किए थे फॉर दी डॉस डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन. उसमें बहुत सारे लोगों को डाला गया था, उसको बहुत बड़ा बनाना था. और उन 2 साल की जो हायर रिक्रूटमेंट हुई थी उसकी वजह से डॉस में इस साल वैकेंसीज बहुत कम आई हैं. मे बी सम फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल वुड हैव रिटायर्ड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. थोड़ा शायद रिस्ट्रक्चरिंग हुआ हो. तो दैट इज द सोल रीजन दैट यहां पे वैकेंसीज कम आ रही हैं दिस ईयर. Again, as per the unofficial information, now would this be the trend in the coming years? It is difficult to tell. बट एज ऑफ नाउ देर इज नो सच मैंडेट. है ना, एक होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन का व्यू है कि हमें बंदे इतने ही हायर करने हैं या कम हायर करने हैं या ऑटोमेशन पे जाना है. ऐसा कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है. सो वी कैनॉट से व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर, एटलीस्ट बेस्ड ऑन द करंट सर्कमस्टांसेस. नाउ व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट? देखिए, इम्पैक्ट सीधा साधा है, इसमें कुछ घुमाने फिराने वाली बात नहीं है. ऑब्वियसली द कॉम्पिटिशन वुड इंक्रीज. नाउ सम पीपल आर सेइंग कि जी बहुत सारे लोग नहीं देंगे इसलिए कंपटीशन उतना ही रहेगा, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा. वी शैल नॉट केयर अबाउट व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स. वी शैल ओनली केयर अबाउट द नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स. और अगर आप भी सीरियस हैं तभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, नहीं तो आप सुनेंगे क्यों? फॉर्म चाहे 2 लाख भरे, 3 लाख भरे, हम सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स का नंबर लेंगे. दैट आई थिंक विल रिमेन द सेम वेदर द सीट्स आर 200 और वेदर दी सीट्स आर 65 to 70. एक सीरियस एस्पिरेंट चांस जरूर लेगा कि वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है या नहीं. तो मेरे यहां से मेरे जो आइडिया है मेरा, उसके हिसाब से दिस द इम्पैक्ट वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द कॉम्पिटिशन. द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू इंक्रीज. नाउ हाउ कैन यू मिनिमाइज दैट इम्पैक्ट? हाउ कैन यू स्टिल बी पॉजिटिव ऑन योर चांसेस? ठीक है, that first of all depends upon your mindset, because
मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 2023 का अगर आप डेटा देखेंगे, दिस इज फ्रॉम 2023, तब आपकी आई थिंक कुछ 270 सीट्स थी, इफ आई एम करेक्ट, 250 240 जो भी थी। एट दैट टाइम द जर्नलिस्ट कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ इन द जर्नलिस्ट डोमेन वाज अराउंड 230, और 230 पे जो रैंक था वो 142 था लास्ट। इसके बाद और नंबर नीचे चले गए थे। सो 270 में से अगर आपको सेलेक्ट होना था, यू शुड हैव गॉट अ रैंक ऑफ 142, एंड एट दैट 142 द कट ऑफ वाज 230। अगर मैं इसको अब 90 कर दूं, मीनिंग इट शैल बिकम 1/3, ठीक है, तो मैं इसका भी थोड़ा 1/3 करूंगा, अराउंड 45 47 आ जाएगा। और पिछली 2023 की ही लिस्ट में अगर मैं देखूं, 45th या 50th रैंक लेने के लिए नंबर जो आपको चाहिए थे वो थे 240, विच मीन्स यहां पे 10 प्लस मार्क्स अगर आपने पिछले साल भी लिए होते, या कट ऑफ थी जो पिछले साल, इफ द नंबर ऑफ सीट्स वुड हैव बीन 1/3, द कट ऑफ would have increased from 230 to 240 in the unreserved category journalist domain. ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल एनालिसिस है, दैट माइट नॉट बी 100% करेक्ट, बट दिस इज व्हाट द डेटा शोज। अगर आपके पास आरबीआई से आरटीआई जो आया था वो है, आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं अराउंड 142 रैंक वाज द लास्ट पर्सन इन द अनरिजर्व कैटेगरी, क्योंकि बीच में और भी एससी एसटी ओबीसी के रैंक भी होते हैं, एंड ही गॉट 230। तो अगर मैं 1/3 सीट्स करूंगा तो 45th रैंक वाला भी जर्नलिस्ट डोमेन में अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएगा, और उसको नंबर चाहिए थे 240 टू गेट दिस रैंक। सो अब आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है और सीट्स कम हो रही हैं, व्हाटएवर वे यू वांट टू सी इट, बट देयर इज वेरी क्लियर कट एनालिसिस कि कंपटीशन जो इंक्रीज हुआ है वो इतना इंक्रीज हुआ है दैट यू नीड टू गेट 10 मार्क्स मोर। सो नाउ इट इज ओनली अबाउट माइंडसेट। आइदर यू थिंक यार सीट्स कम है, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है, छोड़ दो। आई मीन एवरीबडी हैज देयर ओन मेटल, एवरीवन हैज देयर ओन लेवल। कुछ लोग अपने आप को पुश कर पाते हैं, वो पुश कर लेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, वो ना करें, बिकॉज अगर आप ना चाहकर भी पुश करेंगे, इट विल ओनली रूइन योर करियर फर्दर, इट विल नॉट लीड टू एनी गुड रिजल्ट्स। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ठीक है, मैं पहले तैयारी करके अगर 230 मार्क ला सकता था, आई विल स्टडी फर्दर and try to get 10 marks more and we'll reach that figure of 240, then you will eventually get selected even if the seats are less. बाकी सीट्स कम होंगी तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स तो कम बनेंगे ही बनेंगे, ये तो फैक्ट है। बट क्या वो आप होंगे जो नहीं बनेंगे या कोई और होगा, ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। और ओवरऑल मैं बोलूंगा, नाउ दिस रेगुलेटरी बॉडी डोमेन हैज लॉट ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व। अर्लियर इट यूज्ड टू बी ओनली आरबीआई, नबार्ड, सेबी है, इफ्सका है, पीएफआरडी, एनपीएस, एडाई, हैड अ लॉट ऑफ entities involved, and most of them are very much overlapping in their syllabus. If I take RBI as your main exam, यहाँ पे quant, reasoning, English, current affairs, FM, ESI, English writing, these are your main components. Once you're done with RBI, you can go for NABARD, ARD static, ARD current affairs, ठीक है, decision making computers भी है, but they are not that much of a game. तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे 70 सीट्स यहाँ पे आ गई, अगर आपकी जर्नलिस्ट की 60-70 यहाँ आ गई, सो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स 140। सेबी में भी अच्छी खासी सीट्स आई हैं, 62। यहाँ पे भी आरबीआई के साथ 30-40% ओवरलैप तो है, बट यू हैव टू रीड सम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ, कमर्स एंड अकाउंट्स, एंड सम पार्ट ऑफ इको आल्सो। बट वंस यू आर डन विद सेबी, देयर आर सम स्मॉल फिशेस इन द पॉन्ड लाइक IFSCA, पीएफआरडी, एनपीएस एंड IDAI, which are also kind of giving some decent, not healthy, decent number of seats in last 2 years. इसका का 23-24 में 23 में आया था 20 सीट्स जर्नलिस्ट, 24 में भी 20 सीट। इरेडाई का, सॉरी 20 नहीं 10, इरेडाई का लास्ट ईयर 2023 में नोटिफिकेशन आया था 20 सीट्स। इस साल भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड इन द जर्नलिस्ट डोमेन अराउंड 10, 15, 20 सीट्स। तो शायद ये एग्जाम्स रेगुलर हो जाए, ठीक है। अगेन दैट माइट क्रिएट अ डाउट इन योर माइंड कि सर इनका तो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, बट द वेरी नेचर ऑफ दीज एग्जाम्स दैट दीज आर नॉट दैट रेगुलर इज एक्चुअली गिविंग अ गुड चांस टू क्लियर दोज एग्जाम्स। क्योंकि अगर ये रेगुलर हो गया ना कि इफ्सका की हर साल 20 सीट आनी ही आनी है, एडाई की हर साल 20 सीट आनी ही आनी है, दैट कॉम्पिटिशन विल बिकम स्काई रॉकेटिंग। सो दैट इज इवेंचुअली हेल्पिंग यू, आई एम टेलिंग यू, दैट इज इवेंचुअली हेल्पिंग यू कि जो सीट्स रेगुलर नहीं है इन एग्जाम्स में, आप उसका फायदा उठाइए। बट इट नीड्स टू बी डन विद अ लॉन्ग टर्म प्लान।
आप जानते हैं एग्जाम क्लियर करना अपने आप में मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, सिलेबस को समझें, पैटर्न को समझें, पीवाईक्यूज को समझें, एग्जाम क्लियर करना उतना मुश्किल नहीं है। तो सर होता क्यों नहीं है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द कंपटीशन, आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अबाउट कि हम सब लोग इस एग्जाम को बहुत जल्दी करना चाहते हैं, बहुत जल्दी जॉब लेना चाहते हैं कि बस अगले 6 महीने में मेरी जॉब लग जाए। चाहे हम 5 साल के साइकिल में फंसे हो, फिर भी बस अब अगले 6 महीने में मेरी जॉब लग जाए। उससे व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर नॉट डूइंग एनी लॉन्ग टर्म preparation for any single or 2 3 exams. We are trying to give multiple exams without having focus on any single exam, and that is the main problem. Exam clear करना नहीं, exam को जल्दी जल्दी clear करना is the main problem in the life of many people. Well, that's all. I have given you enough information. I think what I have honestly मैंने बता दिया है. Now the decision is yours. ठीक है, टाइमली डिसीजन लीजिए जो भी आप करना चाहते हैं, बिकॉज सीट्स कम है, ज्यादा है. व्हाट विल इम्पैक्ट यू इज नॉट द नंबर ऑफ सीट्स, अदर योर इनडिसिसिवनेस. क्योंकि अगर इधर के नहीं रहे फिर उधर के भी नहीं रहेंगे. सो विद दैट आई टेक योर लीव. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.